दैनिक जागरण स्कूल में रम्या के बारे में निकला हुआ है। बुचिया का नाम निकलल बा दैनिक जागरण अखबार में। बुचिया का नामो निकलल बा सेंड ऑन दिले बा। कहाँ लिखल बा? अरे बेटा उठ के पढ़ ले तू। एकदम सुबह सुबह तले। Do you remember when we made paper boats and had a race? Or do you remember when we heard stories from our favorite dadi nannies below the twinkling stars in the late summer nights? Well, we all have a memory like that. But do you see any child around you playing the same games you enjoyed the most? Well, no. Greetings to respected judges, esteemed teachers, supportive staff, and all my fellow opponents. Today, I am here to speak against the motion. Is digital technology making children's life better? Well, the answer is no, it's not. Let's start from privacy, or rather say the lack of it. Our every move is tracked, our preferences are stored, and our data is sold. Youth, unaware of the consequences, give away their personal information without a second thought. One wrong post, one data leak, and lives can be ruined. In the name of convenience, we are easily handing over our freedom, and this is known as emotional pollution. And don't we hear the cybercrime, how people are misusing our information? Well, we can't neglect that. Secondly, technology promised us better interactions, right? Just see around you, it has made us more isolated than ever. Children lie to talk to any AI bot rather than sharing their problems to their own parents. It has made us so much isolated that we don't spend time with our own family members. Well, this can be neglected. Well, just see. Don't we know that what children are watching behind the screens? This is my third point. That what are they searching, what are they watching, we don't know. And we can even blame it on bad parenting that yes, parents are giving phones and children, they are getting misused. Parents, it's the parents' fault. Yes, we can say that. But suppose you're standing next to a child and the child is playing any normal game and suddenly an ad pops up which is inappropriate and can lead them to the places they aren't even ready for. So, is it still the fault of bad parenting or is the fault of the algorithm? Children were then also intelligent without the digital technology and now also. And even we can give example of Elon Musk, right? Well, in an interview, he said that he has a screen time of only just a minute. We get the poison but we don't consume it. It's time to stop glorifying the gadget and start questioning the cost. When the youth is isolated, when our privacy is invaded, how can we see that it's shaping lives? It's time to think by yourself that how we are going to save our youth and our future. Thank you. Marvelous performance. Each one of you showed us exceptional determination and spirit, a testimonial to the fact that every participant is a champion in their पे देखिए, ये आज का अखबार है 7 दिसंबर 2025 और यहाँ पे रम्या के स्कूल में जो कल प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें रम्या ने जीता हुआ था मतलब। तो ये देखिए सब कुछ पूरा निकला हुआ है। कितना प्राउड फील होता है जब अपने बच्चे इस कॉन्टेस्ट में विजयी होते हैं। तो ले जाइए जी मिठाई तो आप खिएबे ना कहीं। हाँ हाँ फादर का खिया देलन आप ना मनाई बिल्कुल ना मनाई। छेना 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 का मिठाई शिवल्ला से लिए चाहे गाजीपुर से जाके ले। नमस्ते प्रणाम। तो आज मैं आप लोग के साथ में इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ बहुत ही इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। कल क्या था रम्या? कल था इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन साइदा फैज़। साफेज ना साइदा फैज़। अच्छा हाँ स्कूल में गाजीपुर में जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें रम्या का स्कूल जो है वो विजयी हुआ है। मतलब रम्या ने पार्टिसिपेट किया था और उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। जो डिबेट था इंग्लिश डिबेट था
और रम्या ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराया। रम्या के पापा को भी बहुत ज़्यादा खुश है, इतने खुश हैं कि उतरा गए हैं एकदम, उतराना इन द सेंस कि मतलब खुशी से झूम गए हैं। तो रम्या ना जब बनारस गई थी तो सेकंड प्राइज़ पाई थी, बट गाज़ीपुर में उसने फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए, बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए। तो कल है स्कूल में सम्मान समारोह, जहाँ पे रम्या को वो एक मेडल भी मिला है, बड़ा सा जो ट्रॉफ़ी होती है, बट वो स्कूल के लिए होती है, वो स्कूल में रख दी गई है। बाकी इन लोगों को जो भी मिलता है वो कल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इनाम मिलने वाला है और वो जो एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो मिलने वाला है। तो वो सारी चीज़ें, तो मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ खुद पे। और इस टॉपिक पे हम थोड़ी देर में आप लोगों से बात करेंगे। भी मैं नहा के आई हूँ और ये वाला स्वेटर वाली ब्लाउज़ मैंने मीशो से ली, आप लोगों के साथ में प्रोडक्ट टैग कर दूँगी और अच्छे से तैयार होंगी। इस लिपस्टिक का अगर सेट चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, तब मिलती हूँ, तब आराम से बैठ के बात करते हैं जी। तो अब हो चुकी है धीरे धीरे शाम का टाइम और मैं यहाँ पे अपने सारे काम करके बैठी हूँ। इस वाली साड़ी का मुझे वीडियो शूट करना था। ये वाली साड़ी आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना पूछा है। ये साड़ी ना मैंने ग्लैम ब्यूटी करके पेज है इंस्टाग्राम पे, उनको मैं फॉलो भी करती हूँ और उनकी यहाँ की जितनी भी मेरी सबसे बेस्ट साड़ियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के पेज की है। और ये जो रियल नग लगा हुआ है ये नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ बैक कैमरे से। ये देखिए, ये जो रियल नग नहीं होता, ये साड़ी आप अगर शोरूम में लेने जाएंगे इतनी कॉस्टली पड़ेगी, पूरी साड़ी पे हैवी सा। तो ये ग्लैम ब्यूटी के पेज से मैंने लिया है। वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते होंगे ना तो वहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। इसमें अभी फॉल भी नहीं लगा है, इसका ब्लाउज भी स्टिच नहीं किया है। तो सोच रही हूँ ना कि अभी आंखें भी ठीक है, नज़र न लग जाए भगवान की कृपा से, तो किसी दिन बैठ के वो कर लो, क्या बोलते हैं, ब्लाउज स्टिच कर लूँ। तो कंपटीशन की हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो किसी भी पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फील होता है। मेरी जगह पे अगर किसी के भी मतलब बच्चे हुए होते तो कोई भी माँ बाप इतना खुश होता। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा खुश थे। कल ही मतलब पता चला था, आज न्यूज़पेपर में भी सुबह निकला हुआ था, तो देख के और प्राउड फील होता है जब बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मेरी रम्या, इसीलिए आप लोग बोलते हैं ना उससे ब्लॉगिंग करवाइए, अच्छी वॉइस है, तो उसके लिए आप लोग का बहुत सारा थैंक यू। लेकिन मैं ब्लॉगिंग में उसको नहीं ढकेलना चाहती, नहीं ठूसना चाहती। वो पढ़ने में अच्छी जा रही है, एक उसका अच्छा रास्ता है, तो मैं चाहती हूँ उसी में जाए। बाकी समय समय पे जब कुछ ओकेज़न होता है, घर पे है, तो ब्लॉग में दिखती है, मेरी हेल्प भी करती है, मेरा ब्लॉग भी शूट करवाती है, मेरी रील शूट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं पूरे दिन कैमरे पे इसीलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरी बेटी 8वीं क्लास में है और वो पढ़ने में भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है। और अभी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और मैं उधर कपड़े धो रहे हैं तो माइंड मत करिएगा, मैं ऐसे कर लेती हूँ। वो आज रम्या की उन्होंने ड्रेस धुली है आज, क्योंकि मैं आज वॉशरूम क्लीन की हूँ, हेयर वॉश किया है और दूसरे काम की हूँ। तो आज उन्होंने ड्रेस धुल के डाल दिया है, मैं इसको प्रेस कर दूंगी। तो हम दोनों लोग मिलके अपना काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रम्या भी अपना ड्रेस धुल लेती है, लेकिन आज वो फ्री थे तो उन्होंने बोला कि लाओ, मैं मतलब आज खुश हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई बेटी की सेवा कर रहे हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो क्या मैं बात कर रही थी, कुछ तो मैं कर रही थी, हाँ 8वीं कक्षा में है और ऊपर से वो पार्टिसिपेट भी करती है, बहुत सारे कंपटीशन में करती है। तो ये बताइए कि मैं पूरे दिन अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ, हर छोटी से छोटी चीज़ दिखाने के लिए कैमरा दिन भर घर में ऑन रखूँ, तो मेरे घर का माहौल कैसा होगा, बच्चे पे मेरे कैसा असर पड़ेगा। इसलिए जब वो नहीं होती है तो मैं अभी मेरे 2 सालों से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग ढंग से नहीं की है। उसका रीज़न बस यही रहता है कि जब वो होती नहीं है तो मन नहीं लगता और जब वो होती है तो कैमरा नहीं उठता। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और भी फैमिली के जो मेम्बर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ब्लॉग में, बहुत सारे लोग, तो फिर वही ब्लॉग फीका 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 ही रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज मैंने इतने सारे प्रोडक्ट शेयर किए हैं, वीडियो शूट किया है, क्योंकि आज मीशो पे चल रही है महा सेल, जहाँ पे 70% का ऑफ़ है। और ये वाला कॉट सेट भी मैंने वहीं से मंगाया हुआ था। इसकी पैंट बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर सा है, तो ये मैंने पहन लिया हुआ है। चलते हैं घर में। अब जो मेरा टाइम है, मैं ना बालों में ना ड्रायर नहीं लगाती हूँ और मेरे यहाँ से ना बाल वाइट हो रही है। देखिए, अगर आपको दिख जाए तो कहीं कहीं है, 1-2 बाल, एक बाल इधर दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये देखिए। तो मैं कोई हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ घर पे ही, आंवले वगैरह का। यहाँ पे भी वाइट बाल है, पता नहीं क्यों 2-3 बाल ना, 3-4 यहीं पे वाइट बाल हो गए हैं। तो अभी मैं अपने बालों में ऐसा कुछ ट्राई करती नहीं हूँ, वही सरसों या नारियल का तेल लगाती हूँ और शैम्पू यूज़ करती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बातें मैंने कर ली बहुत ज़्यादा। पहले वाली बार जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब आई थी, इतने लंबे लंबे, इतने घने, फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कितना किसका भूत सवार हो गया। मैंने स्ट्रेटनिंग करवा ली और मैंने रिबॉन्डिंग एक बार और करवा ली, तो मेरे बाल एकदम झाड़ू हो गए। तो कभी भी जीवन में परमानेंट स्ट्रेटनिंग कभी भी मत करवाइए। कितना भी आपको शौक है ना, तो स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करवा लीजिए। पार्लर में जाके जो 2 दिन 3 दिन के लिए जो स्ट्रेट होता है वो करवा लीजिए, लेकिन परमानेंट स्ट्रेटनिंग कभी भी जीवन में मत करवाइए। आपके बाल इतने डैमेज, इतने ख़राब हो जाएंगे, आपकी नेचुरल खूबसूरती आपकी चली जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत प्यारी, मैं रोज़ ही लगती हूँ, लेकिन आज मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं घर में। और अब मेरा जो टाइम है वो है थोड़ा आराम करने का, और रम्या का टाइम है पढ़ाई करने का, तो उसको करने देते हैं पढ़ाई। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो यहाँ हो गया था सुबह का टाइम, और रम्या के पापा सब ड्रेस वगैरह रम्या का वॉश कर रहे थे। तो आज मेरी जिम्मेदारी थी गलियारा क्लीन करने की, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे चौथे, मतलब ये देखिए गेट है ना जो जाली जाली, और ये है मेन हाईवे NH है। तो इस पे दिन भर, मतलब आपको कभी भी 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात को भी रोड खाली नहीं मिलता है। दिन भर ट्रक चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से इतना धूल यहाँ पे आता है। और हर दूसरे चौथे 5वें दिन अगर आपने साफ़ नहीं किया तो वो धूल जालों पे बैठ के बहुत वो हो जाता है। तो आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में रम्या को इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। और जब अपने बच्चे कुछ भी अच्छा करते हैं ना जीवन में, तो वो खुशी ना मैं महसूस कर पा रही हूँ। बस दुर्गा माता से प्रार्थना करूँगी, भोलेनाथ से, कि हे भोलेनाथ, बस जीवन में ना वो ऐसे ही आगे बढ़े, वो खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, और अपने जीवन में उसकी जितनी भी कठिनाइयाँ आए वो मेरे पे आए, मेरे बच्चे पे कभी ना आए, और वो खूब सारा तरक्की करे बस। और उसमें जितना भी मैं योगदान कर सकती हूँ वो है। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उसने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा है, तो उसने घर से सीखा है और स्कूल से सीखा है। मतलब स्कूल में जाती है, वहाँ पे तो देखिए रम्या इंग्लिश नहीं बोलती, उसके स्कूल के सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन एक जो बोलने का तरीका होता है, एक जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं मेरे से उसको मिला है। मैंने अपने बच्चे को हमेशा हर छोटी चीज़ों में, ऐसा नहीं कि शर्मीला बच्चा या बोल ना पाए, सब चीज़ों में आगे रखा। कोई कंपटीशन छोटा सा भी हुआ तो मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए बोला उसको, कभी ये नहीं बोला तुम नहीं कर सकती हो। कई बार वो हारी भी है, ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम, अभी बनारस गई थी तो वो 2nd प्राइज़ पाई थी, उससे पहले वो फर्स्ट प्राइज़ पाई थी। लेकिन जब बचपन में, जब से वो छोटी थी, तब से मैंने उसको हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। भले वो हार जाए, वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, निकाल दीजिए, लेकिन मैंने कभी उसको बोला चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करना और बेस्ट कर सकती हो। तो ये जो माँ बाप का भरोसा होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और कई लोगों ने बोला कि रम्या तो हिडन टैलेंटेड है, इसको कहाँ आपने छुपा के रखा था। तो बस कभी कभी मैं ले आती हूँ। अब आप समझ पाएंगे कि मैं ब्लॉगिंग उस तरीके से नहीं कर पाती हूँ, या अपने बच्चे को इन्वॉल्व क्यों नहीं करती हूँ। वैसे इंस्टाग्राम पे मेरी बेटी 6 महीने में भी कभी एक बार दिख जाती है, मैं उसको फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर रखती हूँ। लेकिन हाँ, यूट्यूब जो है वो अभी भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैं उसको समय समय पे ले आती हूँ। जब भी वो होती है तो मेरी बहुत हेल्प करती है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं कल, तब तक